Hello students, in the last lecture we had started about the different database concept and we have seen how to generate the reports, how to create the QAs and how to create forms and tables in the last lecture. In this lecture we are going to study about the introduction to data model. In this we will study what is exactly data models, what is the use of data model. So first of all we will see the introduction of data model. So what is data model? Data model is nothing but it defines the logical structure of how your database is modeled. So the structure of your database designed is done in this data model. Okay. So the first point is database is nothing, data model is nothing but it defines the structure of your database, how your database is modeled, that is defined in your data model. Second, in this it also shows us how the data is connected to each other and how they are processed inside the system and it is stored in the system. How the data is stored in the system, how the data is processed in the system, that is shown in the data model. With the help of data model we can see how the data is connected to each other and how that data is processed and it is stored. Then there are some of the different database management systems available in which they do the classification of the data based on its data model. Okay, so depending upon the data model the classification of the data is done by using the different types of DBMS. Okay, so what is DBMS? DBMS is nothing but it is a database management system. So there are different types of database management system available in a database and that management system classifies the data according to the data model. Okay, underlining data model, based on it they classify the data. Then the different types of data models which are available are in the network are as data model is there, then that is relational data model is there, network data model is there, object oriented data model is there, then entity relationship data model is there, and many more. So there are many different types of data models available, but in this chapter we are only studying about the relational data model. That is, we are going to study about the relational data model in this chapter. So have you all understood what is the data model, what is the use of data model? So what is data model? Data model में क्या किया जाता है कि हमारे जो भी डेटाबेस हमने डिफाइन किया है, तो डेटाबेस डिफाइन करने के बाद उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर रहता है डिफाइन करने के लिए, तो वो डिफाइन करने के लिए जो लॉजिकल स्ट्रक्चर लगता है तो वो हमें डेटा मॉडल प्रोवाइड करता है. फिर डेटा मॉडल्स में क्या रहता है कि डिफरेंट डेटास क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है टू ईच अदर, एक दूसरों को डिफरेंट डेटा कनेक्ट करके उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है और फिर वो क्या किया जाता है हमारे डेटाबेस में स्टोर कैसे करना है वो भी देखा जाता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है. वो क्या किया जाता है कि बेस्ड ऑन द डेटा मॉडल के अंडरलाइनिंग पे बेस के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. जैसे कि नेटवर्क डेटा मॉडल है, फिर रिलेशनशिप डेटा मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल है, हायरार्चिकल डेटा मॉडल, ये डिफरेंट डेटा मॉडल है जो हमारे DBMS में हमें प्रोवाइड किया गया है. पर यहाँ पे हम सिर्फ कौन सा देखने वाले हैं, नाउ व्हाट इज रिलेशनल डेटा मॉडल. तो रिलेशनल डेटा मॉडल ये क्या है, ये मोस्टली रिलेशनल डेटा मॉडल को भी RDBMS कहा गया है. What is RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्यों? क्योंकि ये रिलेशनल डेटा मॉडल किसको फॉलो कर रहा है या किस में क्लासीफाई किया है, हमने DBMS में क्लासीफाई किया है. तो जो मॉडल रिलेशनल मॉडल डेटाबेस को फॉलो कर रहा है इसलिए उसको नाम क्या दिया गया है, RDBMS दिया गया है. स्पेशली इसकी डिज़ाइनिंग किसके लिए की गई है, तो जो भी रिलेशनल डेटाबेस हम क्रिएट करने वाले जैसे कि टेबल, नंबर ऑफ डिफरेंट टेबल्स हम क्रिएट करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल्स में, डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करेंगे और वन टेबल दूसरे टेबल से कैसा रिलेशन शो कर रहा है, दैट विल बी डन इन दिस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यह क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस में क्या किया जाता है, तो जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हो. तो वो फॉर्मेट कौन सा रहेगा, विद द हेल्प ऑफ रोज एंड
कॉलम्स। तो जो भी डेटा स्टोर किया जाएगा डेटाबेस में वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहेगा। अगर डेटा रोज एंड कॉलम्स में स्टोर किया गया है तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर डेटा अगर यूज़र को एक्सेस करना है तो यूज़र वो पर्टिकुलरली डेटा इजीली लोकेट कर सकता है और उसकी जो भी वैल्यू रहेगी विद इन द डेटाबेस वो इजीली एक्सेस कर सकता है, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ टेबल डेटा क्या रहेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। उसके बाद कि इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें टेबल में ऐड करनी रहेगी तो हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी टेबल में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। और वन टेबल सेकंड टेबल के साथ कौन सा रिलेशन शो कर रहा है तो उनके बीच में हम रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं। तो ये था रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि जो टेबल्स है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप शो करने के लिए रहते हैं। और फिर उसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा हम टेबल में कैसे स्टोर करते हैं, डिफरेंट कॉलम्स में स्टोर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी रिकॉर्ड है या फिर जो भी डेटा है वो स्टोर करते हैं। तो पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर टेबल में हम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बट देयर इज वन रूल कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट किए जाएंगे तो भी ईच कॉलम शुड हैव यूनिक नेम। द फर्स्ट नेम शुड बी नॉट सिमिलर टू सेकेंड एंड सेकेंड शुड नॉट बी सिमिलर टू फर्स्ट. So there should be unique name assigned to your column, whereas in table each row will represent your set of values. तो सेट ऑफ वैल्यू पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए किस में शो की जाती है, रो में. तो रो का काम क्या किया जाता है कि रो में क्या किया जाता है कि रिलेटेड वैल्यूज का जो भी सेट है वो हमें शो किया जाता है. तो अभी जो रिलेशनल डेटा मॉडल में है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कॉमनली यूज की गई है वो कौन सी है, जैसे एट्रीब्यूट हुआ है, फिर है टपल है, डोमेन है, डिग्री है. तो ये क्या है, ये सब हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो रिलेशनल डेटा मॉडल में यूज की गई है वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट कॉमनली यूज रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी इज द एट्रीब्यूट. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मतलब क्या रहता है कि हम जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं हमारे टेबल में, तो देयर कंटेंस सम कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स. तो उसके पास क्या रहते हैं, कुछ पैरामीटर्स रहते हैं. तो वो रिलेशन के इसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटाबेस में. तो कॉलम ऑफ रिलेशन आर द एट्रीब्यूट्स विच आर रेफर्ड एज फील्ड्स. मतलब क्या होता है, कॉलम्स की जो भी रिलेशनशिप हम शो करते हैं दे आर द एट्रीब्यूट्स एंड दे आर ऑल्सो ऑफनली कॉल्ड एज फील्ड्स. तो कॉलम्स को हमने देखा है लास्ट इसमें भी कि कॉलम्स आर यूजुअली रेफर्ड एज फील्ड्स. तो एट्रीब्यूट में क्या किया जाता है ये याद रखना है आपको कि जो भी पैरामीटर्स रहता है डेटा के लिए, जो रिलेशन के लिए हम स्टोर करते हैं, तो वो रिलेशनशिप कॉलम्स में डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं विच इज जनरली ऑल्सो रेफर्ड एज फील्ड्स. तो उसे एट्रीब्यूट भी कहा गया है और फील्ड्स भी कहा गया है. ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है. देन द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज टपल. टपल मतलब क्या कि जो भी टेबल में हम डेटा राइट करते तो ईच रो, हर एक रो हमारे टेबल में क्या रिलेशनशिप शो कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज टपल. टपल मतलब जो रो में डेटा फिलअप किया है दैट इज टपल. अगर हमारे रो में n कॉलम्स है तो टपल ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन दैट n वैल्यूज. जितने कॉलम्स है उतने वैल्यूज हम एंटर करेंगे, उन वैल्यूज में रिलेशनशिप शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टपल यूज करते हैं. अंडरस्टूड, टपल. नेक्स्ट है, थर्ड है डोमेन. डोमेन मतलब क्या होता है कि डोमेन में हम एक सेट ऑफ वैल्यूज एट्रीब्यूट के लेते हैं फ्रॉम ईच रो. ओके, सेट ऑफ वैल्यू रहते हैं. फिर उसमें क्या किया जाता है, जनरली हम क्या करते हैं कि वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए हम उसका डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट सेट करते हैं. डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट सेट करने के बाद क्या होता है कि जो प्री डिफाइंड स्कोप रहता है हमारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट डोमेन. ओके, एट्रीब्यूट डोमेन मतलब क्या, every attribute has some predefined scope. That scope is nothing but the attribute domain. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट रिलेशनशिप देखा तो स्टूडेंट रिलेशनशिप में क्या होता है, रोल नंबर है. रोल नंबर ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज लेता है. तो हेंस हमारा डोमेन सेट यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा डेटा टाइप यूज करेगा, इंटीजर. मतलब रोल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, मतलब उसका डेटा टाइप कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, इंटीजर. अगर इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं तो उसका कौन सा डोमेन सेट हम चूज कर सकते हैं एज इंटीजर वैल्यूज. सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन अ डोमेन फॉर ईच कॉलम. ओके,
Then the next is the degree. Now what is degree? What is the meaning of degree? Degree is nothing but number of attributes in a relation. Okay, पर्टिकुलर रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स हमने इन्वॉल्व किया है, दैट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप. Okay, so each relation will have how many number of attributes, depending upon that the relationship or the degree of relationship will be shown. So understood what is degree? Degree is nothing but the number of attributes in a relation is the degree of that relation. Okay, the next is the cardianity. Now what is the cardianity? What is the meaning of cardianity? Cardianity is nothing but the number of tuples in a relation. Okay, number of tuples in a relation is how much, that is the cardianity of that particular relation. Okay, so these are the 5 different terms or different technologies which are used under your relational data model. So have you all got it, this 5? Now we will see, here is a small diagram, you all can see there is a relationship shown between the students. Okay, so here is the different columns: roll number, name, city, branch code and mobile number. Okay, so these are what your columns. Each column is having its attribute. Okay, and this is called as tuple. Tuple means the entries of your row. Okay, so this is the roll number 1 to 3 they have given sequentially. Names have been assigned, city, branch code and so on. Now here you all can see, in the previous lecture I had already told what is primary key. Okay, primary key मतलब क्या रहता है कि उसकी वैल्यू इन थ्रू आउट द टेबल, हमारे टेबल में उसकी वैल्यू यूनिक रहेगी, सेम वैल्यू की दूसरी एंट्री टेबल में नहीं रहेगी, यूनिकनेस रहता है, उसे क्या बोलते हैं, रोल प्राइमरी की. जैसे हमारे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, ये हमारी प्राइमरी की है. क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक ही आईडी असाइन किया जाता है. एक आईडी 2 स्टूडेंट को असाइन करते हैं कि हम सिमिलर आईडी नहीं देते. एक नाम के 2 बच्चे हो सकते, पर एक आईडी का कितना बच्चा रहता है, एक ही बच्चा रहता है. दैट इज योर यूनिक आईडी. ओके, यूनिकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज शोन बाय योर रोल नंबर. सो रोल नंबर हियर एक्ट एज योर प्राइमरी की. वेराज अभी ये इसे क्या, रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, सिटी का कॉलम है, दे आर कॉल्ड एज कॉलम और एट्रीब्यूट. whereas row is called as row और tuple. अभी इसकी कैसे हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसका क्या करना है, हमें डोमेन है. ये डोमेन मतलब क्या, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो रहेगी दैट यू विल हैव टू असाइन ओवर हियर. इन दिस केस this MECH is referred as, or this branch code is referred as the foreign key. Okay, which is taken from the table branch. Okay, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रांच कोड और ब्रांच नेम है. ये एक टेबल है, स्टूडेंट एक टेबल है. स्टूडेंट टेबल के फील्ड्स में हमने कौन सी फील्ड ऐड की है, ब्रांच कोड लिए. तो ब्रांच कोड ये सेकंड टेबल था, ब्रांच कोड ब्रांच टेबल में ब्रांच कोड ये प्राइमरी की है, पर अभी ये दोनों टेबल में हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं. देन इन दैट केस प्राइमरी की ऑफ सेकेंड टेबल जब हम फर्स्ट टेबल में लेते हैं तो वो एज एन फॉरेन की वहाँ पे क्या करता है, एक्ट करता है. खुद के टेबल में वो प्राइमरी की रहती है, पर जब वो खुद के टेबल के अलावा कहीं दूसरे टेबल में ऐड किया जाता है तो वो वहाँ पे क्या किया जाता है, फॉरेन की जैसे ट्रीट किया जाता है. जैसे अगर हम हमारे कंट्री में अदर कंट्रीज के कोई आए तो हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर्स आए हमारे इसमें, तो क्या हुआ, दे आर फ्रॉम अदर यूनियन, दे हैव एंटर्ड इन आवर हाउस. सिमिलरली अगर हमारे टेबल में दूसरे टेबल की वैल्यू एंटर की गई है देन दैट विल बी योर फॉरेन की. अंडरस्टूड व्हाट इज फॉरेन की? ये हमें है आगे कंसेप्ट, विल सी इट इन डिटेल. सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर in which I have shown you the relationship between student and branch. तो ब्रांच टेबल और स्टूडेंट टेबल में रिलेशनशिप शो की गई है. ब्रांच टेबल की प्राइमरी की हमने किस में ऐड की है, स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की ऐड की है. तो ब्रांच टेबल की प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में क्या हुई है, फॉरेन की हुई है. समझ में आया? एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा, टेबल अटैच होगा. इसका मतलब क्या, अगर मैंने 101 के रिकॉर्ड सर्च किया तो ब्रांच CS कौन सा है तो वो चेक किया जाएगा, और जो भी रिलेटेड नेम रहेगा वो भी यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा फॉर रोल नंबर 101. ओके, सो दिस 2 टेबल हैव बीन some relation developed in them. So
Now moving forward, we will see what are the different keys that are used in database. रिलेशनल डेटाबेस में कौन से डिफरेंट टाइप्स के कीज यूज की गई है वो अभी हम ये वाले पॉइंट में देखेंगे. तो इसमें जैसे कि मैंने बोला है कि टपल में क्या रहेगा, द वैल्यूज ऑफ टपल मस्ट बी यूनिक, द टपल्स विद इन अ रिलेशनशिप मस्ट बी यूनिक. ये उसका फर्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि जो भी टपल्स में रिलेशनशिप रहेगी वो रिलेशनशिप हमेशा कैसे चाहिए, यूनिक चाहिए. उसके बाद इट मीन्स दैट नो टू टपल्स इन अ रिलेशनशिप शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट. मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो टपल्स है, ओके, तो दो टपल्स की वैल्यू, there should be no two tuples in your relationship which will have the same value. सेम वैल्यू के दो टपल्स हमारे रिलेशनशिप में नहीं चाहिए हमें. दैट इज एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट हमें वो टाइप क्या चाहिए, यूनिक चाहिए. अगर यूनिक नहीं है तो वो क्या चाहिए, हमें नॉट नल चाहिए. ओके, यूनिकनेस चाहिए. अगर यूनिक में वैल्यू नहीं रहेगी तो वो वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नॉट नल असाइन कर सकते हैं. सो इसमें क्या होगा कि यूनिकली हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईच टपल इन अ रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप में रिलेशन में ईच टपल हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पर ये आइडेंटिफाई करते वक्त हमें उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उसके वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज पे, और उसके कंटेंट्स के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, दैट रिलेशन वी हैव टू चेंज इट टू फ्रॉम रेफर फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर रिलेशनशिप. तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के कीज यूज करते हैं. तो कौन से कीज यूज करते हैं, द फर्स्ट इज द कैंडिडेट की. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिडेट की. कैंडिडेट की मतलब क्या कि रिलेशनशिप में अगर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज रहेगी वो वैल्यूज हमें कैसे चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए. अगर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे चाहिए, यूनिक चाहिए. उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास है उसको हम क्या कर सकते हैं, टपल्स के रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टपल्स के रिलेशनशिप में हम यूनिकली उसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड एज कैंडिडेट की. दिस एट्रीब्यूट इज नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी की. क्यों, सॉरी, दे आर कॉल्ड एज कैंडिडेट की एंड दिस कैंडिडेट्स हैज अ प्राइमरी की. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिडेट की, हैव यू ऑल अंडरस्टूड. अगर हमारे रिलेशन में एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हम लेने वाले तो उसकी वैल्यू हमारी कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी. ओके, अगर यूनिक वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टपल्स कौन से रिलेशन में. तो ये जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं यूनिक वैल्यूज के, तो वो क्या रहता है, कैंडिडेट की रहते हैं. क्यों, क्योंकि ईच ऑफ द कैंडिडेट एक्ट एज अ प्राइमरी की. क्योंकि यूनिक वैल्यू हमें किससे असाइन की है, हमारे प्राइमरी की तो की है. तो यहाँ पे ईच एट्रीब्यूट क्या होगा, तुम्हारा प्राइमरी की जैसे ही वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर स्टूडेंट्स के 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से अगर मैंने रोल नंबर लिया है और मोबाइल नंबर लिया है तो ये दो वैल्यूज मैंने लिया है एज अ कैंडिडेट की. क्यों, क्योंकि रोल नंबर भी यूनिक रहता है और मोबाइल नंबर भी यूनिक रहता है. तो नो टू स्टूडेंट विल हैव आइदर सेम मोबाइल नंबर और सेम रोल नंबर. मोबाइल नंबर के चांसेस है 10% सेम मोबाइल नंबर रह सकते हैं अगर दो सिस्टर एक क्लास में रहेगी, पर रोल नंबर कभी भी नहीं रह सकता है. सो दिस आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स की जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एज अ कैंडिडेट की डिफाइन कर सकते हैं. Hence, two attributes of the candidate keys, two attributes are the candidate key as both candidates are for primary key. तो ये दो attributes रहते हैं जिसमें candidate key के जैसे वो workout करेंगे and they are also the candidates for your primary key. तो ये था first key, that is your candidate key. The second type of key is the primary key. प्राइमरी की हम सब जन ऑलरेडी फैमिलियर हो. क्या है अभी प्राइमरी की, प्राइमरी की मतलब यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करना है या फिर हमारा टपल यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी की. वन और मोर कैंडिडेट कीज में से आप ऐसा एक एट्रीब्यूट ले सकते हो जिसकी वैल्यू यूनिक रहेगी. जैसे कि हमने लास्ट कैंडिडेट की में देखा है रोल नंबर और मोबाइल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल लिया है, तो वो दोनों को कैंडिडेट की असाइन किया है. बट मोबाइल नंबर में चांसेस हो सकते हैं कि वो सेम मोबाइल नंबर दो स्टूडेंट का हो सकता है, तो मोबाइल नंबर ये उसका प्राइमरी की नहीं बन सकता है. बल्कि अगर मैंने रोल नंबर डिफाइन किया है तो रोल नंबर ये यूनिक रहता है. दो बच्चों का रोल नंबर कभी सेम रहता है क्या, नहीं रहता है. तो देन इन दैट केस रोल नंबर विल एक्ट एज माई प्राइमरी की. द थर्ड इज
composite primary key. Now what is composite primary key? Composite primary key मतलब क्या? If no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuples, then more than one attribute are together taken as primary key. Such primary key consisting of more than one attribute is called as composite primary key. अभी कंपोजिट प्राइमरी की मतलब क्या रहता है कि हमारे रिलेशनशिप में कभी क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक फील्ड नेसेसरी नहीं है, या फिर एक रो से हम यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या करते हैं, मोर देन वन एट्रीब्यूट लेते हैं. मोर देन वन एट्रीब्यूट को हम एज अ प्राइमरी की कंसिडर करते हैं. फिर वो 2 एट्रीब्यूट रहेंगे या 3 एट्रीब्यूट रहेंगे, तो उसे हम अगर प्राइमरी की एज्यूम कर रहे हैं तो वो प्राइमरी की कौन सी रहती है, वो प्राइमरी की नहीं रहती, बल्कि वो कौन सी रहती है, हमारी कंपोजिट प्राइमरी की. कंपोजिट प्राइमरी की में इतना याद रखना है कि कंपोजिट प्राइमरी की इसमें क्या किया जाता है कि हमें अगर हमारा जो भी टपल्स है उसकी वैल्यू हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यूनिकली, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, मोर देन वन एट्रीब्यूट एक साथ लेते हैं एज अ प्राइमरी की. Then that more than one attribute together is called as the composite primary key. The next is the foreign key. अभी फॉरेन की मतलब क्या, जैसे कि हमने बोला है कि 2 टेबल्स में रिलेशनशिप अगर हम शो कर रहे हैं, 2 टेबल्स में रिलेशनशिप ले रहे हैं, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द फॉरेन की. तो फॉरेन की यूज किया जाता है जब हम 2 टेबल्स में रिलेशनशिप शो करते हैं. जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा है, स्टूडेंट एक टेबल है, ब्रांच एक टेबल है. तो स्टूडेंट और ब्रांच ये दोनों टेबल में हमने रिलेशनशिप शो की थी, तो उसमें हमने क्या किया था, ब्रांच टेबल की जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट टेबल में ली थी. तो ब्रांच टेबल का जो प्राइमरी की था दैट विल बी प्राइमरी की फॉर ब्रांच टेबल, बट अगर वो प्राइमरी की हम स्टूडेंट टेबल में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट टेबल में ब्रांच की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की वर्कआउट करती है. इट मीन्स a foreign key is an attribute whose value is derived from primary key of another relation. दूसरे टेबल की प्राइमरी की अगर फर्स्ट टेबल में हम ले रहे तो इन फर्स्ट टेबल वो उसकी फॉरेन की बन जाती है. ठीक है, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहती है, मोर देन वन प्राइमरी की एक टेबल में नहीं हो सकती है. समझ में आया? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ईच टेबल कंसिस्ट ओनली वन प्राइमरी की. देयर आर no 2 primary keys allocated for one table. So the primary key of other table, if invoked in the first table, then it will act as a foreign key. That means any attribute of the relation which is used to refer the content from another relation becomes the foreign key if it refers to the primary key of the reference relation. जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वो फर्स्ट खुद के टेबल की प्राइमरी की है, तो वो जो अगर फर्स्ट टेबल में उसको यूज किया जाता है तो वो फर्स्ट टेबल में एज अ फॉरेन की बिहेव करेगी, नॉट एज अ प्राइमरी की. हेंस अगर ये रेफरेंसिंग ऑफ टू टेबल्स हो रहा है, दैट इज 2 रिलेशन एक साथ रेफर कर रहे हैं, तो उसमें हम इसमें क्या कह सकते हैं, एज अ फॉरेन रिलेशन. तो इन दोनों टेबल्स में क्या हो सकता है, फॉरेन रिलेशनशिप हो सकता है. 2 टेबल भी रह सकते हैं, 3 टेबल भी रह सकते हैं. ठीक है. Now next is the type of relationship. ये थे 4 types of keys which we have seen. कौन से 4 types था? Candidate key, primary key, then is composite primary key and the foreign key. So ये 4 keys हमें याद रखना है. Candidate keys मतलब क्या रहता है कि 1 और more than 1 values, 1 attribute हमें unique value चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि टेबल में से वो fields हमें चूज करना है. अगर देयर विल बी 5 एट्रीब्यूट्स तो उसमें से कौन से भी 2 एट्रीब्यूट तुम एज अ कैंडिडेट की यूज कर सकते हो. जो प्राइमरी एट्रीब्यूट रहता है वो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं. सेकेंड था प्राइमरी की. प्राइमरी की मतलब क्या रहता है कि जो भी कैंडिडेट कीज हमने सिलेक्ट की है मोर देन 1 रहती है, उसमें से जो यूनिक वैल्यू हमारे टपल्स की हमें शो करते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं. देन दैट इज वर्किंग एज योर primary key for that particular relation. You all have to keep in mind that primary key is always the unique for a particular table. The third is the composite primary key. Composite primary key मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल एट्रीब्यूट से हम रिलेशनशिप शो नहीं कर सकते यूनिकली, तो उसमें हमें क्या होता है कि मोर देन 1 एट्रीब्यूट हमें लेना पड़ता है कि एज अ प्राइमरी की.
अगर हम मोर देन वन एट्रीब्यूट लेते हैं एज अ प्राइमरी की, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज प्राइमरी की बट इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट प्राइमरी की. एंड द लास्ट वाज द फॉरेन की. फॉरेन की में क्या किया गया है, अगर दो टेबल्स में या दो से ज़्यादा टेबल्स में हमें रिलेशनशिप शो करनी है, देन इन दैट केस और एट दैट टाइम वी विल यूज दिस फॉरेन की. फॉरेन की में क्या होता है कि जो खुद के टेबल में प्राइमरी की रहती है वो अगर हम दूसरे के टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस वो वहाँ पे क्या एक्ट करती है, एज अ फॉरेन की. ओके, उसके लिए हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट एंड ब्रांच. तो ब्रांच टेबल की जो प्राइमरी की थी वो अगर हम स्टूडेंट टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट टेबल में एज अ फॉरेन की क्या कर रहा है, वर्क करता है. समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. Now what are the type of relationship? Relationship मतलब क्या, अभी हमें देखना है what is one to one, what is one to many and what is many to many. तो ये different types of relationship है. तो अभी ये relationship क्यों यूज़ की जाती है, जब टू और मोर टेबल्स हम relationship शो करेंगे, वो दोनों टेबल्स अगर हमें यूज़ करना है तो उनके बीच में हमें रिलेशनशिप शो करनी पड़ती है हमारे डेटाबेस में. तो वो रिलेशनशिप में क्या किया जाता है, किसकी प्राइमरी की, वन टू वन में किसकी प्राइमरी की कौन से टेबल में जाएगी, फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की सेकंड में जाती है या सेकंड की फर्स्ट में आएगी. फिर वन टू मैनी में क्या होगा, मैनी टू मैनी में थर्ड टेबल क्रिएट होता है तो थर्ड टेबल में कौन सी वैल्यूज लेनी है, ये सब हम किस में देखेंगे, ये वाले पॉइंट में, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज वन टू वन. नाउ व्हाट इज वन टू वन रिलेशनशिप? वन टू वन रिलेशनशिप इज नथिंग बट टेबल वन का एक रो, ओके, only one row of table 1 will have a matching in another table 2, or from table 2 1 will have the matching in table 1. That is, a row in table A can have only one matching row in B, that is, or vice versa. This is not common relationship type, as data stored in table 2 could just be easily stored in data A. However, there are some valid reasons for using this relationship type. A one-to-one relationship is used for security purposes to divide large tables and various other specific purposes. अभी वन टू वन रिलेशनशिप में क्या किया जाता है कि टेबल ए और टेबल बी, मेरे पास दो टेबल है, टेबल ए और टेबल बी. तो टेबल ए की एक वैल्यू सिर्फ एक रो मैचिंग कहाँ पे रहेगा, टेबल बी में रहेगा, या फिर वाइस वर्सा, बी का ए में रह सकता है. पर इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप शो करने के लिए इसमें नेसेसरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा बी में स्टोर है वो हम इजीली डेटा ए में स्टोर कर सकते हैं. बट वन टू वन रिलेशनशिप कब यूज़ की जाती है, जब हमें हमारा जो भी डेटा है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज आउट करना होगा उसके लिए, या फिर हमारा अगर टेबल लार्ज रहेगा तो हम टेबल को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट, देन लार्ज टेबल का डिवाइडेशन करते हैं हम यूजिंग दिस डेटा टाइप, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक पर्पस है उसमें हम ये यूज़ करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. इसमें क्या किया जाता है, पे और एम्प्लॉय, ये दो टेबल है. एम्प्लॉय की प्राइमरी की हम पे को दे सकते हैं या फिर पे की प्राइमरी की हम एम्प्लॉय में दे सकते हैं. उन दोनों में हमने रिलेशनशिप शो किया. ये देखो, पे आईडी जो पे टेबल की थी वो हमने किस में ली है, एम्प्लॉय टेबल में. सो इन दिस टेबल एम्प्लॉय आईडी है तुम्हारी प्राइमरी की है, वेर एज पे आईडी जो सेकेंड टेबल की हमने फर्स्ट टेबल में ली है, तो ये पे आईडी यहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्क करेगी. समझ में आया? सो दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप. In the next lecture we will study what is one to many and what is many to many relationship. Thank you.